motion of emotion, Baramasa and Sadritu in Rasprabhu. Nagwan Singh, I'm now going to introduce Nagwan Singh. Nagwan Singh is pursuing his PhD from Department of History, University of Delhi. He has been working on the intellectual and general history of the early modern India. His MPhil dissertation deals with the 18th century literary texts. Currently, he is trying to reassess and establish the significance of Rithi Granthas as historical sources. In that respect, he has presented papers which are based on his research. He has presented papers as such. Kasbah Bilgram as the sphere of learning and circulation of ideas, a micro-historical study at the Research Scholars Conference, Microhistory and the Things We Don't Know About It, Department of History, University of Delhi. He has also presented on Ruskin earlier, Sayyid Ghulam Nabi Ruskin and his works, a historical analysis of literary culture in the 18th century Awadh, at Research Scholar Workshop, Contemporary Practices of History, Department of History, University of Delhi. Nagwan is joining us for the first time, but we hope our association is going to continue for many years to come. I now invite Nagwan to present his work. Over to you now. Yeah. Thank you, Swati. Thank you for these kind words to me. So I'm really very fortunate and delightful for be here. Am I audible? Yeah, you are. Okay. So I really want to thank all of you, and thanks to all of you for having me here. So before I start, I want to say something about the background of my work, and as some of it mentioned by Swati as well. So, and I would like to thank the organizer of this whole workshop or the seminar series, and especially all the organizing members or BK chair of this session, BK Singhal sir. So just और मैं आप लोगों सबका स्वागत करना चाहूँगा, और मैं इस अपने पेपर का पृष्ठभूमि आपसे शेयर करना चाहूँगा. तो द टाइटल ऑफ माय पेपर इज द मोशन ऑफ इमोशंस, बारहमासा एंड षट ऋतु इन रस प्रबोध. So this particular text has been written by Ruskin, who was a court poet of Nawab Safdar Jung. So he has written lots of literary works like Ras Prabodh, Ang Darpan, and some Mutafari Kavit or Futkal, as Diti ma'am has mentioned, that Futkal Kavit. So it is miscellaneous. So all the aspects of poetry and genre come into its ambit. So before I start, I want to say about few things about Baramasa. What is Baramasa and what is षट Ritu? So Baramasa षट Ritu is a genre in which seasons and months has been depicted, and the emotional aspects of the Virahanis, who is separated from his beloved, has been depicted. So how, what kind of movement or motions she is getting during that time when he was separated by his beloved or by his loved one. So षट ऋतु का अगर हम बात करें तो षट ऋतु की जो परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है, और एंशिएंट ट्रेडिशन वी हैव ऑफ षट ऋतु विच कम्स फ्रॉम द, जैसे कि अगर हम ऋतु की बात करें तो मौसम की जो हमारी समझ है और मौसम से जो हमारा लगाव है और प्रकृति से जो हमारा जुड़ाव है वो वैदिक कॉस्मोलॉजी से जुड़ के आता है. व्हेन वैदिक कॉस्मोलॉजीज हैज बीन created, then can we have the next slide, Surabhi? So जब हम षट ऋतु को समझने का प्रयास करते हैं तो हम वैदिक कॉस्मोलॉजीज को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो इस पर मैं आऊँगा बाद में. अभी मैं ऋतु को एक्सप्लेन कर लूँ. तो वैदिक कॉस्मोलॉजीज में क्या होता है कि हम ऋतु जो रत है, रत से निकल के आता है. रत
धर्म और यज्ञ, इन तीनों के समावेश को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें ऋतु एक प्रिंसिपल और एक थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूरे वर्ल्डली ऑर्डर को डिवाइन और वर्ल्डली एंड ह्यूमन और सैक्रिफिशियल, these four elements has been created, or in which Rath is the principle that govern all those sphere of the activities. So Rath is very much important, और जिसको हम order से लेते हैं. Rath is stands for order, which is also defines the continuity, that these movement will change in a particular way. सो इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है, इसको हम लोगों ने ऋतु में भी और सीजन्स में भी डिवाइड किया है, कि हम प्रकृति को समझें और उस पर्टिकुलर एवरी, जैसे एज वी ऑल नो एंड वी विल डिस्कस लेटर इट, कि एवरी मंथ एंड एवरी सीजन्स हैज सम काइंड ऑफ पिक्युलियरिटीज. उसकी एक अपनी विशेषता है, उसकी एक अपनी समझ है, जो लोगों ने समय समय पर उसको निखारा और उसके हिसाब से अपने बॉडीली प्रैक्टिस, फेस्टिविटीज और एवरी काइंड ऑफ you can say everyday life they have governed through these changes of seasons. So I also would like to talk about the manuscripts on which I am working, the Ras Prabodh. So it is this Granth is about Riti Granth. It is a Riti Granth, or in which we have lots of genre. It's Riti Granth itself is genre, and in this genre we have several genre also, like बारह मासा, छठ ऋतु, नायक नायिका भेद, और फिर वी हैव रस ट्रेडिशन, इसका रस का बोध कराना, द सेंटिमेंट्स ऑफ द रसास, इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रसलीन. सो इन मैन्युस्क्रिप्ट वी कैन सी दैट वी हैव टू folios. One is written in Persian script और सेकेंड इज इन हिंदी, देवनागरी. सो क्या होता था कि जैसा कि दीदी मैम ने भी बताया कि द वर्ल्ड वाज सो मच मल्टीलिंगुअल, और पीपल वेर पॉलीग्लॉट्स इन अर्ली मॉडर्न इंडिया. सो दे न्यूज सेवरल लैंग्वेजेस, और उसमें क्या होता था कि वो स्क्रिप्ट्स, वो डिपेंड करता था कि द ऑथर इज, व्हाट वाज द डोमेन ऑफ द ऑथर, वेयर फ्रॉम वेयर ही इज बिलोंगिंग. सो जैसे पद्मावत जैसी का है, और भी कई, मृगावत, मधुमालती, ये सब जितने भी हैं, केशव दास के काम हैं. तो ये कहाँ से उनको पैट्रोनेज मिला है, हु इज द पैट्रोनाइजर एंड व्हाट इज द कल्चर ऑफ द पोर्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स. तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये है आपको नस्तालिक में, ठीक है, और स्क्रिप्ट है नस्तालिक पर्शियन, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है वो है ब्रज. तो इसका जो ट्रांसलिट्रेशन है बगल में है, तो ये ब्रज में दोहा किया गया है. तो ऐसा क्या, जो जैसे कि वी हैव ऑल अवेयर अबाउट द वर्क्स ऑफ वसुधा डालमिया और फ्रांसिस्का और सिनी, जिसमें था कि किस तरीके से ये जो द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड नुआंस एंड लेयर्ड एस्पेक्ट ऑफ द हिंदू मुस्लिम डिवाइड और हिंदू उर्दू डिवाइड. तो वी नो दैट द हाउ दिस थिंग्स वाज हैपनिंग. तो उसमें क्या होता था कि जब अर्ली सर्वेस हुए थे, उसमें बहुत तो जो हमारी जो कॉलोनियल डिस्कोर्स और इंडियन नेशनलिज्म का जो पूरा दौर था, उसमें क्या था समझ कि जो डिवीज़न क्रिएट हुआ, लोगों ने इस स्क्रिप्ट को मिसअंडरस्टूड किया जाने लगा. तो इसको जैसे कि मुस्लिम कल्चर के में देखा जाने लगा, और उसमें ब्रज का बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स का नुकसान हुआ. तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द literary traditions of our culture and what kind of diversities it has, so these demands a very serious investigation, or we have to understand the multidisciplinary approach towards these disciplines. But because we have to aware about the particological aspects of the manuscript, हमको कैसे पोथी और किस तरीके से जो ग्रंथ है उसको तैयार किया जाता है, उसकी विधि को भी हमें समझने का जरूरत है, और उसमें किस तरह का स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है, वो लिपि कौन सी है, उसको हम समझेंगे. तो उसमें आपको पेलियोग्राफी संबंधित चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है, और फिर मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन है. जैसा सर ने भी बताया कि बहुत सारा पाठांतर का भी इसमें आता है योगदान. तो इस तरह के कई तरह के कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसको हमको समझने का बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है. सो नेक्स्ट मैं अपनी बात, जो मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि ऋतु, ऋतु
ये रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये किस तरीके से ये रस ग्रंथ जो है, क्योंकि लोगों ने रीति ग्रंथ, भक्ति ग्रंथ इस तरीके से करके कंपार्टमेंटलाइजेशन किया है पूरे हिंदी वाङ्मय का। तो मेरा थोड़ा उस पर भी एक रिजर्वेशन ये रहता है कि हमें उस जॉनर को अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स को समझना चाहिए। जैसे कि अब इसको रीति ग्रंथ हम बोलेंगे, जैसे एक पॉपुलर डोमेन में चलता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीति ग्रंथ, बट एज रसलीन हैज हिमसेल्फ ओपाइंड दैट इट इज़ अ रस ग्रंथ। ठीक है, तो हम रस ग्रंथ इसको समझेंगे और उस हिसाब से पोएट टू पोएट ये डिफर करेगा। तो हमें आई जस्ट वांट टू से दैट कि हमें ऑथर्स के व्यूज़ और ऑथर्स ने किस भाषा या भाखा या ब्रज बोली या अवहट या क्या किस किस का उच्चारण किया है, जब हम वो समझेंगे तो वी आर सो मच give attention to the authors and time or space rather than our own intervention. ठीक है, so next slide. I have dealt with this na Rat, Dharma and Yajna. ठीक है, so Rat is very important. Ritu comes from it. So here is the Doha. So I cannot see the Dohas right now, but ठीक है। तो इसमें जैसे रसलीन ने इसको इसमें ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से he has written this text when he came to Bilgram. So I have also presented paper on Kasba's role of Kasbas in the proliferation of Braj literature. So as we all know that how Mughal culture, Kotli culture, or how regional or princely states were important and religious salons were important in the proliferation of Braj literature. But we have to also register the important significance of the Kasbas, which is the region between cities and the center. So in that context, so we have to also understand the role of Kasbas, how Kasba is so much important. ठीक है, so here is the one aspect of Baramasa or Virah, or what is the separation aspect of the Virah song. So इसमें है कहे संयोग वियोग द्वे गण श्रृंगार सब लोग मिलन कहत संयोग अरु विछुड़न कहत वियोग। तो इट इज क्लियर दैट कि जो मिलन है उसको संयोग कहते हैं और उसको कई बार साहित्य में संभोग और यूनियन से भी उसको देखा गया है। तो इट इज द एटिकेट्स ऑफ द पोएट दैट ही समटाइम्स यूज्ड इट संयोग और संभोग और वियोग और सेपरेशन। सो it is about union or separation. So it is this particular couplet is very much clear that how union aspects of Ritu and Ritu has also the separation or viyog aspects. So Vipralabdha. So can we have the next slide? So in this direction, we can say that Baramasa, the 12-month songs, how this register, how this troops has been understood by the Indian society, and it is we have lots of literary and oral tradition as well. तो इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह का जो विरह का जो प्रतिपादन हुआ है इस पूरे विधि में, 12 मासा का जो तरीका है, जिसमें हम हर एक मंथ को बैसाख, जेठ, चैत, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, इस तरीके से हर महीने का एक अपना एक आधार है और एक समझ है लोगों में, जो कि उनके पूरे दिनचर्या को प्रभावित करती थी। और इसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ आएंगी और डाइटरी पैटर्न्स आएंगे, फेस्टिविटीज़ आएंगे और ह्यूमन नॉन ह्यूमन इंटरेक्शंस के आपको इसमें बहुत सारे प्रभाव दिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरे जॉनर के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भाव और इमोशंस और भावनाओं की कितनी ज़्यादा अहमियत हमारे भारतीय सभ्यताओं में रही है, जो हमें प्रकृति से जुड़ने में एक अहम कड़ी का साबित होती थी। और इससे ये इसलिए भी होता था
क्योंकि हर समय लोग भविष्य और भूत को लेके परेशान रहते हैं और कई तरह की कठिनाइयां फेस करते हैं. So these things only happening, this aesthetics world is all about to maintain our mental and physical health. किस तरीके से हम अपना mental और physical balance कर सकें, इसके लिए रस की जो विधियां हैं, रस जो ग्रंथ लिखे जाते थे और रागमाला, बारहमासा, these genres are all musical जितने भी instruments हैं. So these all things are very much interconnected to each other. Okay, so we have to understand how important role was of the emotion in the sphere of Indian culture. So यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ फोटोज है, जिसका फोटोज और जो ये जो चित्र हैं, इनका कोई मतलब कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे लिटरेरी एनालिसिस से है नहीं. ये बारहमासा का अलग अलग ट्रेडिशन से मैंने फोटो लिया है. आई हैव जस्ट कन्फाइन माई सेल्फ टू द लिटरेरी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बारहमासा. तो इसमें है कि किस तरह से डिपिक्शन हर एक मौसम का किया गया है. सो उसको दिखाने के लिए बारहमासा इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट जॉनर. और इसको दिखाने में मैं ये आपको एक एस्पेक्ट दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके ये वाई दीज राइटिंग्स वर हैपनिंग, वाई रस प्रबोध और वाई रस ग्रंथ हैज बीन रिटन. सो ये एक कॉन्जरशिप का भी कॉन्सेप्ट है, जो कि किस तरह से एटिकेट्स और ये डेवलप किए जा रहे थे मुगल कोर्ट में. सो अगर हम देखें तो ये एटिकेट्स का भी एक हायरार्की है, एक पावर निगोशिएशन है और एक इंगेजमेंट है विद रीजनल एंड विद सेंट्रल कोर्ट. तो मुगल में हम देखें तो मिर्जा नेस और मिर्जा नामा जैसे टेक्स्ट का चलन है, जिसमें कि एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स और दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स. So the minute details of the paintings and music only those people can understand, those who have taste of the aesthetics. तो इस तरह का डिबेट और विवाद जो है हमेशा से विद्यमान रहा कि उसको कौन अप्रिशिएट कर सकता है, हु कैन. और पोएट्स के लिए भी एक चैलेंज था उस समय के दौर में कि वो चाहते उनका जो अपलिफ्टमेंट है या उनका जो फंक्शन है किसी भी टेक्स्ट के वर्क करने का, उसको भी वो लोग निर्धारित करता था वो कॉन्जरशिप. बिकॉज अगर पोएट ने कुछ लिखा है और उसको अप्रिसिएशन ना मिले तो ये पोएट की भी एक तरीके से फेलियर है. तो इस तरह का एक जो डुअल रिलेशन है विद इन पोएट्स एंड पैट्रन्स. सो इट इज ऑल्सो प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस प्रोलिफरेशन ऑफ दिस ब्रश टेक्स्ट. सो जैसा कि आप ये डिपिक्शन देख सकते हैं फेस्टिविटीज़ का, इसमें होली का डिपिक्शन है और इसमें विरह का है. तो इसमें दिखाया है किस तरीके से जो है आइसोलेटेड जो वुमेन है और जो प्रेमिका है वो किस तरीके से विरह में बंधी हुई है. और ये एक चेंजेस पैटर्न भी दिखाता है कि हर एक मंथ में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब चैत में स्टार्ट करें तो चैत और उस तरह से वो जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना मौसम है. और उसमें जैसे कि ये दो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर षठ ऋतु में जाएंगे तो whole aspects of the nuance aspects of the ritu is enjoyable or which is very stimuli for the enhancement of bliss for the lovers, and that whole aspect of the nature is painful when it become इन द सिचुएशन ऑफ सेपरेशन. जब वो लोग अलग हो जाते हैं तो वही सब जो चांद है, जो पीकॉक है और जो जितने भी डिपिक्शन है नेचर्स के, झरना है, पेड़ है, पौधे हैं और जितनी ब्यूटीज़ हैं, नॉन ह्यूमन ब्यूटीज़ और नेचुरल ब्यूटीज़, ऑल आर बिकम पेनफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन. सो ये जो भाव का अप्स एंड डाउन्स है हर एक मौसम में, ये आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एक खास करके फीमेल के एंगेजमेंट को भी बताता है. और इसमें कई तरह का पेट्रियार्कल और डाइडेक्टिकल और नॉर्मेटिव वर्ड्स की भी नीति परक बातें भी इसमें समझ में आती है कि किसका क्या धर्म है. सो एवरीबडी हैज़ बीन गिवन हिज ऑल काइंड ऑफ धर्मा. सबका अपना एक नेचर है जिसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है समय के साथ. तो इसमें जैसे दिखाया गया है कि औरतों को बहुत ज़्यादा ये विरह सॉन्ग को अगर आप पूरा उस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज़ में देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें वुमेन्स के मोबिलाइजेशन पे कहीं ना कहीं एक तरीके का जकड़न है, एक तरह का एंग्जाइटी भी दिखाता है और कहीं ना कहीं कंसर्न भी दिखाता है कि कितना
और ये मैं एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन रखना चाहूँगा कि रीतिकाल में ये बहुत ही यूनिक पीरियड है, जिसमें हम देखते हैं कि नारी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। उनका जो भी मतलब कंसर्न्स है, इट हैज़ बीन गिवन द centrality to the literary aspect, which is very much lacking in the previous time, भक्ति और in previous तो ये स्कूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल द पोएट बिलोंग्स फ्रॉम। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे धाराएं हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि उसको दिखाता है। अब ये इस पिक्चर में वी कैन इजिली से दैट कि किस तरह का डिपिक्शन है इसमें। ये इंजॉयबल मोमेंट है कि जब ये एक तरीके से समझना है कि ये द वर्ल्ड वाज परफॉर्मेटिक। तो उसमें हम एक टेक्स्ट है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन, जो अभी रिसेंटली बुक्स आई हुई हैं, और उसमें और एक मॉनसून फीलिंग मार्गरेट पर्नो की है और कैथरीन बटलर स्कॉफिल्ड की है। तो उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि हाउ द whole mosums or seasons were important for the human being in early modern world. So in these things we have to understand that four major aspects. One is music, second is performance, ठीक है, जो कोर्ट में परफॉर्मेंस होते थे डांस, और थर्ड इज पेंटिंग्स, और फोर्थ इज पोएट्री। तो the whole mechanism for these proliferation of text is that to achieve the maximum bliss, बहुत ही आनंद का भाव। क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में आप जब नाट्य शास्त्र और काम शास्त्र के ट्रेडिशन में भी जाएंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम ब्लिस को अचीव करने की ह्यूमन की हमेशा से इच्छा रही है कि उसको आनंद का भाव हो, और वो उसको कई तरह के फॉर्म्स में दिखाता है। वो जो आनंद है वो गॉड से भी हो सकता है और वो लवर से भी हो सकता है, और वो कई तरह का इंटीमेट रिलेशन हो सकते हैं जिसमें वो ब्लिस को मिलती है। तो ये परफॉर्मिंग वर्ल्ड में हम ये समझते हैं कि किस तरह से म्यूजिक, परफॉर्मेंस और पेंटिंग्स और राग सब मिलकर एक होलिस्टिक अचीवमेंट्स प्राप्त करता है। ठीक है, तो षट ऋतु में भी जैसा मैंने बताया कि ये भी एक तरीके से पूरा एक जो है सोशियो कल्चरल रेगुलेशंस को दिखाता है कि किस तरीके से हम लोगों ने हम इवॉल्व करते हैं, हम इवॉल्व करते हुए इस दौर में आए हैं। ठीक है, इसमें कई बार होता है कि ये जो इसको काउंटर किया जाता है, और इसमें आप हिस्टोरिसिटी और हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इतिहास की चेतना थी वो किस तरह की थी। तो इस पर बहुत सारे वर्क हो चुके हैं वर्नाकुलर के ऊपर, और द हिस्टोरिसिटी इन वर्नाकुलर। तो जैसे संजय सुब्रमण्यम के टेक्सचर ऑफ टाइम्स हैं, रंजीन अकील की जो भारत से डेडिकेटेड बुक है हिस्ट्री इन द वर्नाकुलर्स, ये सब टेक्स्ट हैं जिसमें कि बहुत सारे फॉर्म्स इवन पास्ट बिफोर अस मिला थापर की है। तो इसमें ये सब दिखाने की प्रयास किया गया कि किस तरीके से हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली रिच है ये डॉक्यूमेंट्स, और इसमें ये साइक्लिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू एज राइटली सेड बाय द मिला थापर, इट वाज नॉट साइक्लिकल, इट वाज स्पाइरल। सो जब हम स्पाइरल में क्या होता है कि दूर से अगर हम देखते हैं तो वो साइक्लिकल लगता है कि वो घुमावदार है, लेकिन व्हेन वी स्ट्रेच द बोथ एंड ऑफ दिस स्पाइरल, सो देन वी कैन सी द लिनियरिटी। तब हम उसकी जो एक लिनियर अप्रोच हम हिस्ट्री को लेकर चलते हैं कि हिस्ट्री शुड बी लिनियर इन द अंडरस्टैंडिंग, तो वो लिनियरिटी दिखती है। लेकिन हमारा ट्रेडिशन इस तरह का नहीं था, हम लोग इस तरीके से, और लेकिन व्हेन वी give our huge investigation or serious investigation to these genres, we can easily find the evolutionary aspect of these cultural and socio-cultural formations of Indian culture. So ये एक तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हम इससे देख पाते हैं। So ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेचर को डिपिक्ट किया गया है, और किस तरह से थंडर्स, और किस तरीके से थंडरबोल्ट्स और क्लाउड्स, और जो टेरेन्स हैं, ये डिपेंड करता है कोर्ट टू कोर्ट और रीजन टू रीजन। तो ये जो है कि किस तरीके से और कितना ज़्यादा डाइवर्स प्रैक्टिसेस लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं, और किस तरह का कोर्टली कल्चर है। और ये कहीं ना कहीं कोर्टली कल्चर के साथ साथ एवरीडे लाइफ को भी दिखाता है, जिसमें कि होली, दिवाली, छठ और इस तरीके का कई तरह का डिपिक्शन जो कि अभी तक कंटिन्यूटी में है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 12 मासा को अगर आप देखें, षट ऋतु का तो जो कॉन्सेप्ट है वो कालिदास के टाइम से स्टार्ट होते हुए और पूरा वैदिक ट्रेडिशन से स्टार्ट होते हुए इस तरीके से, और ये राग रागनी का जो ट्रेडिशन है
कि एवरी मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने समय को जो समझा है, ये समय भी हमारा, वी हैव टू गिव इट अ सीरियस कंसर्न दैट कि जो टाइम का अंडरस्टैंडिंग है विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द राइट नाउ। वो वर्ल्ड जो था वो एक अलग दुनिया है जिसमें कि हम पहर की बात करते हैं, 8 पहर, उसमें भी 3-3 घंटे का डिवीजन है। तो इस तरह का जो हर एक पहर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसमें क्या परफॉर्मेंस करना है, किस तरह से हमें अपने दिनचर्या को चलाना है, उसकी समझ को बताया गया था। और हर एक दिनचर्या का एक अपना टोन होता है। अगर आपको आपके आपके मूवमेंट को, आपके इमोशंस को, अगर आपके इमोशंस को अगर आपको जनरेट करना है और उसमें जो इक्विलिब्रियम लाना है या फिर एक बैलेंसिंग लाना है नेचर के साथ और आउटली वर्ल्ड के साथ और इनर वर्ल्ड के साथ, सेल्फ के साथ, तो आपको ये राग्स के साथ कनेक्ट होने से आपको और उसमें हेल्प मिलता है। तो ये हर एक टाइम के साथ राग रागनी का डिपिक्शन, नायक नायिका का डिपिक्शन, तो नायक नायिका भेद, हर एक सिचुएशन में नायिका किस तरह का बर्ताव करती है। तो वी हैव लॉट्स ऑफ नायक नायिका भेद kind of categorization. Even Raslin talks about in an elaborate manner, or we have a great tradition of Nayika Bhed in which he has depicted 1152 kind of categories of Nayika. तो इतनी ये साइको सोशल एनालिसिस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही साइंटिफिक है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी विरहनी या किसी नायिका का क्या बर्ताव रहता है और ये नायक के लिए व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर नायक परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो ये कैटेगराइजेशन कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, नो डाउट, लेकिन इसके पीछे अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो इट इज़ वेरी मच so we have to contextualize whole this understanding of the categorization। क्यों ये जो हो रहा है ये आपको समय में जाकर उसी समय के आधार पर इसकी व्याख्या करना पड़ेगा, ना कि करंट जो आइडियोलॉजिकल पैराडाइम्स सेट किए गए हैं इसके अगर उसमें अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो द मीनिंग हैज बीन चेंज। सो द कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट ऑफ द डिपिक्शन ऑफ नायिका। ठीक है, सो ये जो डाइवर्सिटीज दिख रहा है, ये सारे एक्टिविटीज है, फाउंटेन बोलिंग और मतलब कई तरह का डिपिक्शन है जो कि मैं उसमें नहीं अभी जाना चाहूंगा कि इस तरीके से नेचर के बारीकियों को समझने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसका जो होल एस्पेक्ट है, इसका जो होल हिस्टोरिसिटी है और सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसको मैं समझने का ज़्यादा प्रयास करता हूँ और कोशिश रहती है कि इतना लिटरेचर क्यों इमर्ज हो रहा है बारहमासा का, जिसको डर्क कॉफ ने भी अपनी किताब में डिपिक्ट किया है और वॉडेविले ने भी इस पर काफ़ी बड़ा अच्छा काम किया है। तो द्विवेदी का भी काम है। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ओरल ट्रेडिशन है किस तरीके से लिटरेरी फॉर्म्स में तब्दील होता है, जो कि 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। ठीक है, उसका क्या किस तरह का उसका पूरा फॉर्मेशन है वो है। इसमें जेंडर स्टेटस के लिए ये है कि अब किस तरीके से वुमेन्स का जो वर्ल्ड है वो परफॉर्मेंस में आ रहा है। और इसमें एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कि लोग एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो व्हाई दिस सेपरेशन इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। इसमें ट्रेड है, जैसे कि संदेश रसखा का भी कॉन्सेप्ट में, अब्दुल रजाक का, तो इसमें है कि ट्रेड के लिए लोग इंगेज हो रहे हैं, वॉरफेयर के लिए इंगेज हो रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो लाइवलीहुड के लिए लोगों को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो पीपल वेर गोइंग हियर एंड देयर, सो इट वॉज अ हाईली मोबाइल वर्ल्ड। उस पर मोबिलिटी पे भी बहुत काम हुए हैं। तो ये मोबिलिटी को बारहमासा क्लियरली नहीं डिपिक्ट करता है, बिकॉज ये इट्स अ विरस। तो ये इस मोबिलिटी को नहीं, लेकिन हाँ उस मोबिलिटी को समझने में इस बारहमासा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज और वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट जॉनरा विद इन द बारहमासा। और ये जो फॉर्मेट्स हैं मौसम के डिपिक्शन के, जैसे चौमासा है, मतलब कि अष्टमासा है, इस तरह के बहुत सारे है। चौमासा में है कि जब भी खास करके मानसून्स के टाइम में, मानसून फीलिंग जो टेक्स्ट बुक है इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। इट टॉक्स अबाउट द हाउ मानसून हैज बीन डिपिक्टेड थ्रू इन डिफरेंट जॉनर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन कल्चर। तो उसमें दिखाने का प्रयास ये है कि किस तरीके से जो मानसून का टाइम है और चौमासा का टाइम है, उस समय पीपल वेर नॉट गोइंग एल्सवेयर। तो बारहमासा में भी इस कई बार ये है कि अगर जो प्रेमिका है उसमें है कि कुछ है कि गमिष्ठित पत्रिका का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ है आगच्छत पत्रिका का है, तो इसको कुछ है जिसका हस्बैंड जाने को है, अब बाहर जा रहा है, कुछ है जो आने वाले हैं। तो इस तरह का डिपिक्शन आपको बारहमासा के पूरे ही पेंटिंग्स में दिखेंगे कि शी इज वेटिंग फॉर हर बिलव्ड एंड समटाइम्स
वो जो है उसके याद में विरह कर रही है। तो इस तरह का आइसोलेशन आपकी पेंटिंग्स में उसके खाली बेड को देख के और कई तरह के जो जो आइटम्स हैं थिंग्स, उनकी जो पोजीशंस हैं उनको भी देख कर आपको समझ में आएगा कि किस तरह का एक भाव देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पूरे डिपिक्शन में ये बात क्लियर है कि पीपल वेयर सो मच मोबाइल। तो इसमें और ये है कि और इसमें डायडेक्टिक और डिस्कर्सिव एलिमेंट क्या है, नॉर्मेटिव एलिमेंट क्या है कि हाउ इट इज अ पेट्रियार्कल काइंड ऑफ सेटअप, बिकॉज वुमेन्स हैव टू मेंटेन through all these diverse problematic aspects of their personal lives, but they still have to maintain their chastity। उनको अपनी जो पतिव्रता धर्म जो है उसको निभाना पड़ता था, और उसमें उसके लिए वो लोग बहुत सारे जद्दोजहद और जो वो जो है पूरा जो फंक्शन है उसको वो लोग करती थी कि उनको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के वेट करना पड़ता था। और अब लेकिन वही ऑन द कॉन्ट्रेरी नायिका में वी हैव लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ खंडित मतलब कि नायिका जिसमें कि वो लोग कई तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज है। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। तो इस तरह का है कि उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी इनसेटिएबल नेचर को दिखाया गया है कि वुमेन्स वेयर इनसेटिएबल इन नेचर, और उनका जो है ये उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा करने, वो जो कि काम शास्त्र के ट्रेडिशन और पेट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग जो है हमारा, उसका भी कहीं ना कहीं इनपुट है। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ये जो इंटरडिसिप्लिनरी जॉनर के तौर पर बारहमासा इमर्ज हो गया था कि बारहमासा का डिपिक्शन हर एक स्कूल ऑफ थॉट्स में आपको दिखेंगे, चाहे वो भक्ति हो, चाहे कोटली हो, चाहे वो ट्रेड और कॉमर्स के एरिया में हो। इवन पेजेंट्स वेयर सेलिब्रेटेड, और वुमेन्स एक्टिविटी और उनके घरेलू जो एक्टिविटीज है उनमें भी बारहमासा को गाया जाता था। तो इट इज़ अ वेरी कैपेसियस काइंड ऑफ जॉनर, जिसमें कि इसको सब लोगों ने आर्टिकुलेट और उसको एप्रोप्रिएट और एकोमोडेट अपने साथ किया, क्योंकि इसका जो है एक्सटेंसिव रीच है। तो जहाँ तक हम देखें कि बारहमासा पूरे नॉर्थ इंडिया इवन पाकिस्तान में भी इसका चलन, बांग्लादेश में भी चलन, क्योंकि वो सब पूरे कल्चरली हम लोग कनेक्टेड हैं। तो इस तरह का बारहमासा हम लोग पाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में पूरे एंटायर नॉर्थ इंडिया में, जो कि और वो सूफीज़म में भी मृगावत, मधुमालती और चंदायन, इन सब में भी उनका बारहमासा का डिपिक्शन है। और इसमें यह है कि किस तरीके से लवर्स एक दूसरे को इंगेज करते हैं और किस तरीके से मेल फीमेल रिलेशंस होते हैं और उनका क्या क्या नुआंस एस्पेक्ट है, उसके ऊपर इसमें चर्चा की गई है। तो अब इसमें है कि अब ये किस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि द एंटायर इवन टुडे the emotions played a very significant role in the every aspect of our human lives. So there is a debate between some people say that don't be emotional or don't be like that. So emotions ऐसा नहीं है, emotions and be rational or be reasonable. तो reason और emotions का जो एक binary create किया गया है, it is a very contemporary kind of understanding, but in previous or in our tradition it is interlinked till now. We cannot take any decision without having any emotional connotation or emotional background. So every decision has its kind of emotions. So I want to make a point that the world was so much emotionally vibrant in the previous in the early modern India, and it plays very significant role. So it's an emotional world of emotions, and it plays a very important role in historical events as well, कि कौन क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, उसका एक उसमें एक इमोशंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था। तो और ये जो है कि किस तरीके से इसमें हिस्टोरिसिटी है, वी हैव डिस्कस्ड दैट की हिस्टोरिसिटी है वर्नाकुलर टेक्स्ट में, तो उसकी ये पुष्टि करता है कि इसमें अगर हम अगर तह में जाएं तो ये साइक्लिकल जो अंडरस्टैंडिंग है या जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्लियर होने लगेगा, जिसके लिए हमें इसको माइन्यूटली अंडरस्टूड करना पड़ेगा। तो हिस्टोरिसिटी भी इसकी है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस भी है, बारहमासा में भी है, सठ ऋतु में भी है। और ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड क्लाइमेट, वी कैन इजीली डिसर्न थ्रू दिस माइन्यूट स्टडी। तो हिस्ट्री ऑफ रीजन एंड रिलीजन में क्या है, रीजनल हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ रीजन्स में क्या है कि वी हैव सो मच कन्फाइंड आवरसेल्फ दैट दिस इज द
central history or Mughal history, or this is regional history. So there is a basic major difference between regional history and history of the region. So we have to understand the aspect of history of the region. It is very important because history is the history of the region is historically very significant as compared to regional history. Regional history में क्या होता है कि हम लोग regional understandings को ज़्यादा celebrate करते हैं. So then those celebration distorted the aspect of the history of the region. So we have to understand that the region is very much important and every region has contributed tremendous to the Indian history. So region का इतिहास बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है. अभी सोशियो कल्चरल और कॉन्जियसशिप और जो मिर्जानेस और रसिकनेस का जो द्वंद्व है कि हम समझ लें कि जैसे कि हिंदी में और जो हिंदी लिटरेरी ट्रेडिशन है उसमें रसिकनेस का और रसिकाज का मेंशन है. ब्रिंद के भी कवित्व में है जिसको कि कैथरीन स्कॉफिल्ड ने भी अच्छे से प्रेडिक्ट किया है कि किस तरीके से मुगल वर्ल्ड जो है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो रीजनल कोर्ट्स हैं how they much engaged with each other and what are the significant why these kind of dialogue were happening. तो ये जो हायरार्की है रसिक होने का और कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का और ये एक तरीके से इसमें पॉलिटिकल और इसमें वो भी एक द्वंद्व भी दिखाता है कि मिर्जा होना और जैसे मिर्जा नामा में बहुत सारे जिक्र आए हैं फेक मिर्जा का कि बहुत सारे फेक मिर्जा आजकल घूम रहे हैं और वो द एंग्जाइटी बिटवीन द रूलिंग एलिट्स दैट की लॉट्स ऑफ पीपल वेयर अपलिफ्टिंग देमसेल्व्स. तो ये जो डाइकोटॉमी है ये जो द्वंद्व है मतलब पॉपुलर डोमेन में और उस तरीके से मेन स्ट्रीम में कि लोग इधर से उधर मोबाइल हो रहे हैं तो उसमें भी वो उस मोबिलिटी को कई बार एंग्जाइटी के तौर पर दिखाते हैं. तो रसिक में भी यही है कि अगर पोएट्स बताते थे कि वॉरफेयर के साथ साथ लोगों को इस पूरे अंडरस्टैंडिंग को भी समझ सकते हैं वही लोग रसिक जन होंगे जो काव्य का पूरी विधि और जो संगीत को समझने में सक्षम होंगे. ठीक है. तो ये सब ये सब इसके पूरे कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स हैं 12 मासा के और 6 ऋतु के जिसमें हम इसको हम 4 तरीके से अगर टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस जो बुक है उसकी बात करें तो उसमें एक एस्पेक्ट छूटा हुआ है जिसमें पेंटिंग्स के सिग्निफिकेंस को दिखाया गया है कि इन प्रीवियस टाइम हम लोग का ये सबसे ज़्यादा अचीवमेंट होता था कि मैक्सिमम जैसा कि मैंने बताया कि वो पूरे ट्रेडिशन में आपको दिखेगा कि आनंद की अनुभूति कैसे हो. वो भक्ति ट्रेडिशन में भी है वो हर एक वो जैसे कि हमारा जो डिवीज़न है हिंदू सनातन धर्म का उसमें भी आपको ये दिखेगा कि वो मैक्सिमम कैसे हो सकते हैं. तो उसके लिए एक तरीके से ये जो है पेंटिंग्स म्यूजिक पोएट्री एंड परफॉर्मेंसेस दिस होल 4 एलिमेंट्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू द मूवमेंट ऑफ इमोशन और मोशन ऑफ इमोशंस एंड दीज इमोशंस आर वेरी मच सिग्निफिकेंट at that time which is very much important because it is helpful in the maintenance of your physical and mental health both or which is the aspect of the human life to maintain ourselves in every kind of situation. तो दीदी मैम ने भी ऐसा ही कहा कि अभी जो पेंडेमिक का ऐसा दौर चल रहा है जिसमें कि हमें अपना उस तरीके से सिचुएशन को समझना है और उस तरीके से इंटरेक्ट होकर हमें अपना मेंटल और इस तरीके का जो फिजिकल हेल्थ है दोनों को लेके चलना है और उसमें ये 12 मासा और 6 ऋतु काफ़ी आपको मददगार साबित होगी. धन्यवाद. Thank you, Nagwan, for a wonderful presentation. It was very informative and we could actually gather a lot from your presentation and particularly the way you explained the concept of time and the idea of mobility. It was amazing and it was very bhavpurn as well. So we really could connect with it and it was beautiful. So thank you so much and now